بلیٹن کا آغاز اس وقت کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ شہر کے مختلف علاقوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ رام نگر گلی نمبر 13 گلی نمبر 10 اسلام سٹریٹ کو سیل کیا گیا ہے اور چودھری بلڈنگ بلال پارک اقرا سکول سٹریٹ کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ عثمانیہ کالونی رائل پارک کلا گجر سنگھ عبد الکریم روڈ کو سیل کیا گیا ہے اور کریم پارک بلاک نمبر 2، 3، 4 امین پارک گلی نمبر 1 کو سیل کیا گیا ہے، جبکہ تاج پورہ گلی نمبر 4 محلہ گول باغ شاد باغ نین سکھ گلی نمبر 4 کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ شہر میں کورونا کے زیادہ مریضوں والے علاقوں کو مکمل سیل کر دیا گیا۔ سیل کیے جانے والے علاقوں میں رام نگر گلی نمبر 13 گلی نمبر 10 اسلام سٹریٹ چودھری بلڈنگ بلال پارک اقرا سکول سٹریٹ عثمانیہ کالونی رائل پارک قلعہ گجر سنگھ عبد الکریم روڈ شامل ہیں۔ کریم پارک بلاک نمبر 2، 3، 4 امین پارک گلی نمبر 1 تاج پورہ گلی نمبر 4 محلہ گول باغ شاد باغ نین سکھ گلی نمبر 4 بارادری روڈ گلی نمبر 2 راوی کلفٹن شاہدرہ حمید پارک بادامی باغ گلی نمبر 9 ملک پارک بادامی باغ گلی نمبر 4 سیل کی گئی۔ جوہر ٹاؤن بی بلاک F2 بلاک کینال ویو سٹی بی بلاک جوہر ٹاؤن J2 بلاک اور G3 بلاک واپلا ٹاؤن F2 بلاک G بلاک BCF IR2 B بلاک گلبرگ A3 بلاک گلبرگ B2 بلاک B3 اور B1 بلاک سراج پورہ داروگہ والا بلال کالونی جلو موڑ دھوبی محلہ بسم اللہ ہاؤسنگ اسکیم GT روڈ ایک مینار والی مسجد مناوا DHA فیز 1 کے تمام سیکٹرز عسکری 10 مکمل DHA فیز 1 کے تمام سیکٹرز گلستان کالونی گلی نمبر 9، 11، 13، 15، 8، 5، 26، 27 گلی نمبر 2 شاہ عالم کالونی غوثیہ کالونی احمد کالونی طارق کالونی کچا جیل روڈ ناظم آباد گلی نمبر 1 ای بلاک تاج پورہ مکمل سیل کر دیا گیا۔ ضلع انتظامیہ نے لاک ڈاؤن کو یقینی بنانے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر کی سربراہی میں ٹیمیں تشکیل دی تھیں، جنہوں نے پولیس کی مدد سے علاقوں میں لاک ڈاؤن یقینی بنایا۔ عثمان علیم سٹی 42۔ تو شہر کے مختلف علاقوں کو اس وقت سیل کر دیا گیا ہے، جن میں رام نگر گلی نمبر 13 گلی نمبر 10 اسلام سٹریٹ شامل ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ چودھری بلڈنگ بلال پارک اقرا سکول سٹریٹ کو بھی سیل کیا گیا ہے۔ عثمانیہ کالونی رائل پارک قلعہ گجر سنگھ عبد الکریم روڈ کو سیل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کریم پارک بلاک نمبر 2، 3، 4 امین پارک گلی نمبر 1 کو سیل کیا گیا ہے۔ تاج پورہ گلی نمبر 4 محلہ گول باغ شاد باغ نین سکھ گلی نمبر 4 کو سیل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بارادری روڈ گلی نمبر 2 راوی کلفٹن شاہدرہ کو بھی سیل کیا گیا ہے۔ حمید پارک بادامی باغ گلی نمبر 9 ملک پارک بادامی باغ گلی نمبر 4 کو بھی سیل کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے مختلف رپورٹرز مختلف مقامات پر موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم رخ کرتے ہیں عثمان الیاس کا۔ عثمان، آپ بتائیے گا آپ کہاں پر موجود ہیں اور اس وقت سیل کر دیا گیا ہے علاقوں کو، یہاں پر اس وقت کی تازہ صورتحال کیا ہے وہاں کی؟ جی بالکل، میں اس وقت محلہ گول باغ شاد باغ میں موجود ہوں اور جیسا کہ اسمارٹ لاک کے پیش نظر جو ہے یہ اعلان کیا گیا تھا، تو مختلف علاقوں میں مختلف جو سلیکٹیو گلیاں ہیں جہاں سے کرونا کے پیشنٹ زیادہ ہیں اور وہاں پہ کرونا زیادہ پھیلنے کا خدشہ ہے، ان کو لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ تو اس کو بالکل رات 12 بجے سے پہلے ہی اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے اور گلیوں کو بھی بلاک کر دیا گیا ہے۔ لیکن موجودہ صورتحال یہ ہے کہ جب ہم یہاں پر آئے لاک ڈاؤن کو چیک کرنے کے حوالے سے، تو ایک لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر دیکھنے میں نظر آئی اور لوگوں کی تعداد اس حوالے سے تھی کہ لوگوں کو اس بات کا خدشہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ گلی میں تقریباً 1 سے 2 کیسز تھے جو آج سے 2 ماہ پہلے رپورٹ کیے گئے تھے کرونا کے حوالے سے، اور وہ بھی نیگیٹو ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو لوگ ہیں اس بات پہ اظہار تشویش کر رہے ہیں کہ ان کی گلی کو پورے شاد باغ میں یا اس علاقے میں کیوں سیل کیا گیا۔ تو اس حوالے سے ہم لوگوں کی رائے بھی جانیں گے کہ لوگوں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ اچھا، مجھے بتائیے گا، ابھی آپ بتا رہے تھے کہ کیا گلی کو سیل کیا گیا، تو کتنے پیشنٹ تھے اس گلی میں؟ سر جی، ایک پیشنٹ بھی نہیں تھا۔ یہاں پر 2 مہینے پہلے کوئی بیمار ہوا تھا لیکن وہ کرونا کا پیشنٹ نہیں تھا۔ اب تو ہر کسی کو کرونا کہتے ہیں۔ اس گلی کے اندر میں پاکستان کی یعنی پنجاب حکومت کی اپنی طرف سے پنجاب حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس گلی کے اندر کوئی کرونا وائرس نہیں تھا۔ یہ آگے چیک کریں۔ جو پیشنٹ تھے وہ کیا نام لیتے ہیں پہلے بتائے جا رہے تھے؟ اچھا، مجھے بتائیے گا کوئی موت ہوئی ہو اس گلی سے یا کوئی سیریس کرونا پیشنٹ یا کافی؟ کوئی موت نہیں ہوئی، کوئی بیمار نہیں ہے۔ پوری گلی کو آپ کے چیک کر سکتے ہیں ڈاکٹر۔ ہمیں یہ چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈاکٹر کی کون سی ٹیم ہے جس نے ادھر کہا ہے کہ کرونا کا ایک بھی پیشنٹ ہے۔ موجودہ حالات میں ابھی کی صورت میں ایک بھی مریض۔ اچھا، اس گلی میں ٹوٹل کتنے گھر ہیں اور کتنی لمبی یہ گلی ہے؟ یہ تقریباً اس گلی میں 70 سے 80 گھر ہیں اور 70 گھروں میں ایک مریض بھی نکل آئے۔ پورا گول باغ سیل کر دیں کیا پورا لاہور؟ اچھا، آپ بتائیے گا، آپ جی میں اسی گلی میں رہتا ہوں۔ لاک ڈاؤن کب سے یہ کیا گیا گلی کو، کتنے بجے کیا ہے؟
ये आज सुबह से इन्होंने लॉकडाउन किया हुआ है। सुबह 8 बजे पुलिस आई, उन्होंने उस वक्त का हमें यानी कि घर में सील किया हुआ है और टोटली, और आज कह रहे हैं कि आज इसके बाद आप बाहर भी नहीं निकल सकते, ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं, जो भी आपने करना। अभी यहाँ पे कोई भी एक पेशेंट भी नहीं है। आप मुझे तो बता रहे हैं, मुझे ये बताएं, जब पुलिस यहाँ कोई हुकूमती नुमाइंदे गली को सील करने आए थे तो आपने ये उनको बताया था? रिपोर्ट्स यहाँ कुछ जो अभी दिखा रहे थे नेगेटिव रिपोर्ट्स तो हैं? बेसिक वो खुद गली के मेंबर किसी मेंबर से मिले भी नहीं है। अगर वो मिलके किसी से रब्ता करते, किसी से बात करते, जो एक पर्सन था उनकी रिपोर्ट ऑलरेडी नेगेटिव हो चुकी है, उसके बावजूद इन्होंने किसी गली से या किसी से मिलने की जरूरत पेश नहीं की। और ये बताइएगा वो जो खातून थी, अच्छा ये बताइएगा इस गली में अभी तक टोटल कितने पेशेंट निकले हैं? ये मेरे इल्म में नहीं है। मैं चूँकि सबसे पहला मेरा घर कोरोना पॉजिटिव कोविड-19 हुआ था। और ये कितनी देर पहले की बात है? ये तकरीबन आज तारीख है 1.5 माह से ज़्यादा पहले की बात है। और हम लोग पेशेंट 4 पेशेंट थे, तो क्वारंटाइन रह के 15 दिन रह के हम वापस घर आ गए थे। ये मेरे पास डिस्चार्ज स्लिपें हैं। और ये अब जो नेगेटिव रिपोर्ट्स आपने मुझे अभी भी दिखाई है, कितनी देर पहले की है? ये मैं अभी देख के दिखा देता हूँ कि कौन सी है, कितनी तारीख की हैं। अच्छा जी, ये दिखा रहे हैं कि इनकी गली में ये घर था जिसमें से तकरीबन 4 पेशेंट थे। 4 पेशेंट जो कोरोना पॉजिटिव तकरीबन 1.5 माह पहले थे, लेकिन उसके बाद वो नेगेटिव डिक्लेयर हो चुके हैं और वक्तन फवक्तन इनकी फैमिली की जानिब से जो है ये टेस्ट भी करवाया जा रहा है। और इनका ये कहना है कि इनके टेस्ट उसके बाद मुसलसल जो है डिस्चार्ज स्लिप्स भी हैं और उसके साथ उसके बाद के टेस्ट की रिपोर्ट भी है। कोरोना नेगेटिव स्लिप्स हैं सारी। अच्छा, ये कोरोना नेगेटिव स्लिप्स है, लेकिन इसके अलावा गली में कितने ऐसे? कोई भी नहीं है। एक घर था गली में जिसके 4 पेशेंट एक ही घर से थे, लेकिन उसके बाद इनके बाद गली के सारे लोग यहाँ पे जमा हैं जब से हम यहाँ पे मौजूद हैं। और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस गली में तो एक घर की वजह से पूरे गली को सील किया गया है, मगर वो भी 1.5 माह पहले डिक्लेयर हुए थे कोरोना पॉजिटिव, लेकिन उसके बाद कोविड-19 के जो नेगेटिव टेस्ट हैं उनके बार बार करवाए गए हैं और कोई इस तरह की सीरियस किस्म की कोई यहाँ पे नागवानी कोई सूरत हाल भी नहीं हुई कि किसी की डेथ भी नहीं हुई जिसकी वजह से कि गली को सील किया जाए। तो आपको ये लगता है कि कैमरा आपकी तरफ ही है, आप बताएं गली में आपको क्या लगता है कि ये लॉकडाउन से? नहीं, बिल्कुल ये गली बिल्कुल ही 1.5 माह पहले का जो इनके पास डाटा है ना उसके ऊपर बंद की गई है। उसमें मेरा घर सिर्फ पॉजिटिव हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह 2 वीक के बाद हम लोग नेगेटिव होकर घर आ चुके हैं। घर आए हुए में 1 माह से ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा इस गली में, इस मोहल्ले में कोई भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट नहीं है। अच्छा जी, इनका ये एक मौक़िफ़ है कि इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इनके जो गली को पूरे शादबाग में से सिर्फ एक गली को, जो मोहल्ला गोलबाग गली है, इसको सील किया गया है। उस्मान, सिर्फ 4 पेशेंट थे और पूरी गली को सील किया गया है। ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। क्या इनसे आप पूछ सकते हैं कि सुबह 8 बजे से लॉकडाउन किया हुआ है और सिर्फ एक घर है जहां पे 4 पेशेंट्स थे और वो भी रिकवर कर चुके हैं, तो क्या इन्होंने सुबह से लेके अब तक इंतजामिया को इन्फॉर्म करने की कोशिश की है कि ये आप अगर इनको ये कर रहे हैं गली को सील, तो इसका कोई मकसद अभी नहीं बनता? अच्छा जी, ये बताइएगा कि सुबह से आप बता रहे हैं 8 बजे से गली को लॉकडाउन किया हुआ, ऐसे पेशेंट थे आपके मुताबिक पूरी गली में 1.5 माह पहले, तो इंतजामिया को आपने बताया, बावर करवाया कि इस हवाले से क्यों गली को बंद किया गया है? नहीं, इंतजामिया तक मैं तो नहीं गया। मुझे तो अभी पता चला है कि ये मेरा जो पॉजिटिव आया था मेरी फैमिली का 1.5 माह पहले, उस वजूहात ये बताई जा रही हैं कि सिर्फ ये वजह है। तो अच्छा, सारे जो और से भी सवाल यहाँ से किया था कि अगर सिर्फ एक घर में कोरोना था तो पुलिस को, या जब लॉकडाउन करवाने आए हैं कोई नुमाइंदे आए हैं तो उनको ये बात बताई गई है कि सिर्फ एक घर की वजह से पूरी गली को क्यों सील किया? हाँ, जब वो लॉकडाउन करवाने आए हैं तो उनको चाहिए था ना कि मेरे घर की बेल देते हैं कि मुझसे लेते हैं कि जी कि अभी तक हम पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हो चुके हैं। अगर वो मुझसे पूछते तो मैं उनको यही चीजें उनको दिखा देता। पूरी गली के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे कोई एक मिनट मेरी बात सुन ले। पूरी गली के लोग यहाँ पे मौजूद है। कोई लव शख्स मुझे ये बता दे कि सील करने से पहले कोई टीम ने यहाँ पे सर्वे किया या किसी के कंडक्ट? कोई सर्वे नहीं हुआ और कोई भी आप कहते हैं पुलिस सुनती किसी की बात नहीं सुनती। वो पुलिस को खुद नहीं पता वो किस लिए बैठे हैं। यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी मुख्तलिफ है कि लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हो चुके हैं कि उनकी जाने से ये कहा जा रहा है कि गली को जब सील किया गया है तो ठीक है उस्मान, यहाँ पर खैर सिचुएशन बहुत अजीब सी है और इसकी खैर समझ तो नहीं आ रही अभी। फखर, आप भी सुन रहे हैं ये जो सारी सूरत हाल है, ये अब तक पहुंच रही है आवाज भी हमारे रिपोर्टर की उस्मान की। तो फखर, आप इस वक्त इस्लामपुरा में मौजूद हैं, यहाँ पर बताएं यहाँ पर क्या हालात हैं, यहाँ पर भी क्या इसी तरह की कोई सिचुएशन है?
जी बिल्कुल, इस्लामपुरा में ही मैं मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन उस तरह से नहीं है जैसे शादबाग में है। यहाँ पर कोई इस तरह से ख़ास जो है शहरियों की जानिब से शिकायत सामने नहीं आई। अलबत्ता कुछ देर पहले हमने जो यहाँ का कोरोना पॉजिटिव केस जो जिस घर से निकला था, उनके घर के जो कफील हैं उनसे बात की थी। उनका ये कहना था कि तकरीबन 1 माह पहले ही उनका ये यहाँ से पेशेंट निकला था, जो कि बाद में रिकवर हो गया था। अलबत्ता जो यहाँ पर पुलिस है उससे हमने बात की है, पुलिस एहलकारों से, उनका ये कहना है कि 3 से 4 घर हैं इसी लाइन में जो जहाँ से जो कोरोना पॉजिटिव केसेस निकले थे, और इसी वजह से गालिबन इस हेल्थ एडवाइजरी ने इस गली को सील करने का जो है एडवाइस की थी, जिस पर पुलिस ने इसको सील किया है। तकरीबन कितने घर बंद किए गए हैं इस लॉकडाउन में इस गली में? तकरीबन बताया जा रहा है कि 50 के करीब यहाँ पर घर हैं जो कि इस पूरी लाइन में जो है जिनको सील किया गया है, और किसी भी किस्म के जो आमदोरफ्त है उसको यहाँ पर जो है महदूद कर दिया गया है। और कुछ देर पहले ऐलान भी किया गया था यहाँ की मुकामी मस्जिद में कि जो इस गली में गाड़ियाँ हैं ख़ास तौर पर उनको यहाँ से निकाल दिया जाए, क्योंकि फिर उसके बाद जो आमदोरफ्त है वो यहाँ पर मज़ीद महदूद कर दी जाएगी और यहाँ पर सख्ती कर दी जाएगी। पुलिस का ये भी कहना है कि जो पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात होंगे वो ख़ुद भी कोरोना SOPs का ख्याल रखेंगे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, शहरियों को उस पर सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करवाएंगे, और शहरियों पर भी जो है कोरोना SOPs पर जो अमल दरामद है उसको भी यहाँ पर यकीनी बनाया जाएगा। अलबत्ता जो एहतजाज जैसी सूरत है जैसे कि शादबाग में है, वो हमें इस्लामपुरा में इस वक्त इस तरह की सिचुएशन नहीं है जो कि शादबाग में है। हसन खालिद का रुख करते हैं। हसन, आप जोहर टाउन में मौजूद हैं, पॉश एरिया है, यहाँ पर भी गलियों को सील किया गया है। यहाँ पर भी कंप्लेंट्स आई हैं या नहीं आई हैं, या यहाँ पर हालात जो हैं वो नॉर्मल हैं? जी हाँ, हुकूमत की जानिब से इस लॉकडाउन के फैसले के बाद जहाँ शहर के दीगर मकामात को रात 12 बजते ही सील किया गया है, वहीं पर जोहर टाउन के भी कुछ इलाके ऐसे हैं जिनके रात 12 बजते ही उनको बैरियर्स लगाकर पुलिस की जानिब से सील कर दिया गया है। मैं इस वक्त जोहर टाउन के J2 ब्लॉक के बाहर मौजूद हूँ। इस ब्लॉक की 3 गलियों को पुलिस की जानिब से सील किया गया है, जिसमें तकरीबन 70 के करीब घर जो है वो मौजूद हैं। यहाँ पर आज से 2 माह पहले कोरोना के हवाले से कुछ केसेस सामने आए थे, जिसके बाद वो इस गली को जो है वो आज स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील किया गया है। इसके अलावा J2 के बाद J3 ब्लॉक है, वहाँ पर भी 5 गलियों को सील किया गया है। जोहर टाउन का B ब्लॉक, F ब्लॉक और G3 ब्लॉक, ये 5 ब्लॉक ऐसे हैं जिनकी गलियों को पुलिस की जानिब से सील किया गया है। और अब से कुछ देर कबल SP इकबाल टाउन की जानिब से भी इस इलाके का दौरा किया गया है और तमाम तर सील शुदा गलियों का खुद मुआयना किया गया है। पुलिस की जानिब से अहले इलाका को बारहा ये कहा जा रहा है कि आज से 15 रोज़ तक के लिए इन इलाकों को सील कर दिया गया है, ताहम वो अपने घरों से बाहर मत निकलें, नकलो हरकत ना करें। अगर उनको बहुत ज़रूरी काम के लिए बाहर निकलना है या कोई मेडिसिन लेनी है या हॉस्पिटल जाना है तो उस सूरत में वो बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा उनको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा इन सील शुदा इलाकों में किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को आने नहीं दिया जा रहा। जो भी आ रहा है उसके ID कार्ड चेक किए जा रहे हैं। अगर वो इन इलाके का रहायशी है तो सिर्फ उसको अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। ठीक है, हसन खालिद मेरे साथ मौजूद थे, जो टाउन से हमें अपडेट कर रहे थे। इसके साथ साथ शादबाग से हमारे साथ मौजूद थे उस्मान इलियास, और फ़खर इमाम ने हमें इस्लामपुरा से ज्वाइन किया हुआ था। ये तमाम तर सूरत हाल है जो आज अभी बारिश शुरू हो चुकी है और मुख्तलिफ इलाके हैं जिनको सील कर दिया गया है, गलियों को सील किया गया है, और ये हिदायत जारी की गई हैं कि लोग मूवमेंट नहीं कर सकेंगे और अपने घरों तक महदूद रहेंगे, और कोरोना वायरस की वजह से तमाम तर इकदाम लिए जा रहे हैं। आप सब रिपोर्टर्स का बहुत शुक्रिया। सिर्फ शादबाग का एक ऐसा इलाका है जहां पर हमें थोड़ी सी सिचुएशन अजीब दिखाई दी है। वहां पर लोग कह रहे हैं कि सिर्फ एक घर से पेशेंट्स हमें निकले थे, जो कि 1.5 माह हो चुका है, लेकिन अब सूरत हाल नॉर्मल थी, लेकिन फिर भी इस गली को सील कर दिया गया है। जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए लाहौर पुलिस के 3000 अफसरान और अहलकार ड्यूटी देंगे। CCPO लाहौर के मुताबिक ड्यूटी देने वाले अहलकार खुद भी हिफाजती इकदाम पर अमल करेंगे। शहर में रात 12 बजे से मखसूस इलाकों में लॉकडाउन किया जा रहा है। CCPO लाहौर जुल्फ़िकार हमीद के मुताबिक लॉकडाउन एरिया में मजमूई तौर पर 3000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात होंगे। पुलिस एहलकार मास्क, किट्स, ग्लव्स और सैनिटाइजर के साथ ड्यूटी सर अंजाम देंगे। उनका कहना था कि लाहौर में 32 मुख्तलिफ मकामात पर लॉकडाउन किया जाएगा। सिटी डिवीजन और मॉडल टाउन में 5 मकामात, कैंट डिवीजन में 12 मकामात पर लॉकडाउन होगा। इसी तरह इकबाल टाउन डिवीजन 4, सदर 5, जबकि सिविल डिवीजन के एक इलाके में लॉकडाउन होगा। जबकि लॉकडाउन एरिया में मेडिकल स्टोर, ग्रोसरी स्टोर अपने मुकर्रर औकात में खुले रहेंगे।
हुकूमत पंजाब की जानिब से जुज़वी लॉकडाउन कर दिया गया है। मुतासरा इलाकों में तमाम मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स बंद होंगे। हुकूमती पंजाब की जानिब से ये बता दिया गया है कि सील किए गए इलाकों में मुकम्मल आमदोरफ्त पर पाबंदी होगी और दौरान लॉकडाउन बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी बंद रहेंगे, जबकि पाबंदी का इत्तलाक 30 जून तक होगा। दौरान लॉकडाउन एक गाड़ी पर एक शख्स सफर कर सकेगा और लॉकडाउन वाले इलाकों में लोगों के हुजूम पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। फलों, सब्जियों, पेट्रोल पंप्स, तनूर सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खोले जा सकेंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से तमाम तरह अहकामात जारी किए गए हैं। कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन फिगर्स के हवाले से तो 24 घंटों में शहर में कोरोना के 816 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं और 20 अमवात हो चुकी हैं। हॉस्पिटल्स में 724 मरीज इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं। लाहौर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 400, जबकि केसेज 28,177 हो गए हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के 1,740 नए केस रिपोर्ट हुए, जबकि मूदी वायरस से 50 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पंजाब भर में कोरोना वायरस से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 1081 और केसेज की तादाद 55,878 हो गई है। लाहौर के सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना के 724 मरीज जेरे इलाज हैं। जबकि पंजाब पुलिस पर भी कोरोना के वार जारी हैं। 2 जवान शहीद हो चुके हैं। शुहदा की तादाद 9 हो चुकी है। 24 घंटों में 51 एहलकार कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं और मुतासरा एहलकारों की तादाद 1217 हो चुकी है। पंजाब पुलिस बुरी तरह कोरोना वायरस की जद में आ गई है और 24 घंटों के दौरान मजीद 2 एहलकार मुहलिक मरज से लड़ते लड़ते शहीद हो गए, जिसके बाद शोहदा की तादाद बढ़कर 9 हो गई है और 5 शोहदा के साथ लाहौर पुलिस पहले नंबर पर है। कोरोना से मुतासरा पंजाब पुलिस के जवानों की तादाद 1166 से बढ़कर 1217 हो गई है, जिनमें 695 अफसरान और एहलकार मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज हैं, जबकि 513 सेहतयाब होकर वापस ड्यूटियों पर आ चुके हैं। IG पंजाब के हुक्म पर अब तक 24,329 अफसरान और एहलकारों के कोरोना टेस्ट कराए गए, जिसमें 21,201 की रिपोर्ट्स नेगेटिव और 2,423 के रिजल्ट्स का इंतजार है। DIG ऑपरेशंस पंजाब सुहेल सुखेरा, DIG ऑपरेशंस लाहौर अशफाक खान, SSP डॉक्टर आसिफ शहजाद और SSP अनवर खेतरान सेहतयाब होकर ड्यूटियों पर पहुंच गए हैं। तहम कोरोना के बढ़ते केसेस से पंजाब पुलिस के अफसरान और मुलाजमीन में तशवीश पाई जाती है, जिस पर IG पंजाब ने मुतासरा एहलकारों को बेहतरीन इलाज मुहैया करने की हिदायत कर दी है और वेलफेयर ब्रांच को मुख्तस करदा रकम फौरी मुलाजमीन को फराहम करने का हुक्म दिया है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का लाहौरियों के हवाले से बयान। लीगी MPA कमर लियाकत एडवोकेट की जानिब से वज़ीर सेहत से लाहौरियों से मुआफ़ी मांगने और कलमदान वापस लेने के मुतालबे की करारदाद असेंबली में जमा करवा दी गई है। करारदाद में यह कहा गया है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद का एक निजी TV चैनल के प्रोग्राम में दाता की नगरी लाहौर में बसने वाले 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के बारे में इंतहाई गैर मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करना काबिल मजम्मत है। सूबाई वज़ीर सेहत ने न सिर्फ लाहौर के तारीखी शहर में रहने वालों की बेइज्जती करने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम को जाहिल और ढीठ जैसे नाज़ेब अल्फाज और अलकाब देकर पूरी कौम की शदीद दिल आज़ारी की है। कमर लियाकत एडवोकेट ने करारदाद में मुतालबा किया है कि वज़ीर सेहत से फौरी तौर पर वजारत का कलमदान वापस लिया जाए और डॉक्टर यास्मीन राशिद को यह हुक्म दिया जाए कि वह पूरी पाकिस्तानी कौम और लाहौर में बसने वाले लाहौरियों से मुआफ़ी मांगते हुए अपने अल्फाज को वापस लें। दीगर खबरें शामिल करते हैं। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा एक बार फिर महकमे ट्रांसपोर्ट पंजाब का सारा बजट हड़प कर गया है। सफेद हाथी साबित होते पहले मुल्की लाइट रेल के मंसूबे से मुतल्लिक बड़ी खबर आ चुकी है। सूबे भर के ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए मुख्तस बजट का 98.3% सिर्फ एक ट्रेन पर ही खर्च होगा। पंजाब हुकूमत ने महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब के लिए नए माली साल में 42 अरब 33 करोड़ 30 लाख का बजट मुख्तस किया है, जिसमें 42 करोड़ 33 लाख में से 41 अरब 65 करोड़ सिर्फ ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे पर खर्च होंगे, जबकि पंजाब में ट्रांसपोर्ट के बाकी मंसूबों के लिए बाकी मानदा सिर्फ 68 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 40 अरब 80 करोड़ बराह रास्त ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे पर खर्च होंगे। दस्तावेजात के मुताबिक 67 करोड़ 75 लाख अलाइड वर्क्स और सपोर्ट के लिए और 9 करोड़ 37 लाख पैकेज 2, 3 और 4 पर खर्च होंगे। हुकाम के मुताबिक सूबे भर के ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए मुख्तस बजट का 98.39% सिर्फ एक ट्रेन पर खर्च होगा। तब्दीली सरकार का लाहौर के साथ सोतेलों जैसा सलूक। 3 अरब 86 करोड़ का मंसूबा शाहकान चौक फ्लाईओवर खटाई में बढ़ चुका है। अरबों रुपए के मंसूबे के लिए बजट 2020-21 में सिर्फ 50 लाख के फंड्स मुख्तस किए गए हैं।
शाहकाम चौक फ्लाई ओवर मंसूबा LDA गवर्निंग बॉडी और वज़ीर-ए-आला पंजाब से बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कराया गया। मंसूबे की कास्ट क्लियरेंस महकमा PND ने 11 जून को दी। LDA ने मंसूबे के लिए डिजाइन समेत तमाम तरजीही कामों को मुकम्मल किया। शाहकाम चौक फ्लाई ओवर मंसूबा उड़ान भरने के चौथे रोज ही जमीन बोस हो गया। ज़राए के मुताबिक तब्दीली सरकार ने लाहौर की डेवलपमेंट न करने की तनकीद से बचने के लिए मंसूबा शामिल किया। LDA हुक्काम और वाइस चेयरमैन के बार बार इस्तदा के बावजूद बजट में मंसूबे के लिए फंडिंग नहीं की गई। ज़राए का कहना है कि बजट 2020-21 में फंड मख्तस न होने से मंसूबा LDA ऑन सोर्स और कर्ज के रहमो करम पर रह गया है। पंजाब हुकूमत ने सरकारी कंपनीज के लिए कर्जों में इजाफे की तजवीज़ पेश कर दी है। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट में सरकारी कंपनीज से दीगर मातहत इदारों को कर्ज दिलाया जाएगा। कंपनीज और दीगर मातहत इदारों को 29 अरब 40 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा। सरकारी कंपनियों के लिए कर्जों में इजाफे की तजवीज। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए 14 अरब, एनर्जी होल्डिंग के लिए 10 अरब, LTC के लिए 98 करोड़ और मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी को नए माली साल में 30 करोड़ कर्ज दिया जाएगा। रवा माली साल में भी कंपनियों को 2 अरब रुपए के इजाफी फंड्स का इजरा किया गया। बजट दस्तावेजात के मुताबिक LWMC, रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी समेत दीगर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां शामिल हैं। दस्तावेजात के मुताबिक LWMC को रवा साल 10 अरब रुपए का कर्ज दिया गया था और अब पंजाब भर के वासा के लिए नए माली साल में 4 अरब रुपए का कर्ज दिया जाएगा। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के लिए नए माली साल में 14 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज भी शामिल है। पंजाब एनर्जी होल्डिंग कंपनी को 10 करोड़, पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी को 30 करोड़, फाटा के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी गई है। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए नए माली साल में 98 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मखदूम हाशिम जवां बख्त का कहना है कि यह बजट हर मानों में मुश्किल बजट साबित हुआ है। कोरोना के बायस इन मुआशी हालात में भी हमने अवाम को रिलीफ दिया है। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मखदूम हाशिम जवाब का कहना था कि उन्होंने बजट में हेल्थ और एजुकेशन पर खास तवज्जो दी है। पिछले 20 साल के दौरान लाहौर में एक भी जनरल अस्पताल नहीं बना। उनका कहना था कि कोरोना के हवाले से हेल्थ केयर के लोड को भी देखना होगा। ये वो एक वबा है जिसके साथ साथ हमें डिसीजंस लेनी भी पड़ेंगी, वापस भी करनी पड़ेंगी, फिर लेनी पड़ेंगी, क्योंकि डायनामिक सिचुएशन है। आपने अपने हेल्थ केयर के लोड को देखना। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मखदूम हाशिम जवाब का और ट्रेन के हवाले से कहना था कि जहां एक अस्पताल में एक बेड पर 2 मरीज हो, वहां 300 अरब का सफेद हाथी खड़ा कर दिया गया। जहां एक अस्पताल के एक बिस्तरे पे 2 मरीज लेटे हों, ये कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ, वहां आप 300 अरब का एक हाथी खड़ा कर दें, जिसको अगर मैंने आज फैसला किया कि मैंने सब्सिडी नहीं देनी, उसके बगैर चलाना है, तो मुझे हर एक मुसाफिर से हर एक ट्रिप के लिए 250 रुपया चार्ज करना पड़ेगा फी यूजेज। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि बजट में 56 अरब का टैक्स रिलीफ दिया गया। एंटरटेनमेंट, रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर्स और दीगर के टैक्सों में कमी की गई। कैमरामैन सलमान अलवी, कैमरा अलीरा में, City 42। और शहर में डेंगू ने भी सर उठाना शुरू कर दिया है। दौरान सर्विलेंस फैसल टाउन में 3 मकामात से डेंगू लार्वे की तस्दीक हुई है। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स के शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू सर्विलेंस के हवाले से दौरे जारी हैं। दौरान सर्विलेंस फैसल टाउन के 3 मकामात से डेंगू लार्वे की तस्दीक हुई है और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सफदर हुसैन विरक ने UC 115 मुस्लिम टाउन, असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़िशान नसरुल्लाह रांझा ने UC 210 फैसल टाउन, असिस्टेंट कमिश्नर आइवन अदनान रशीद ने मौजा भौजिके का दौरा किया। और जिले इंतजामिया के दावों के बावजूद शहर में चीनी 70 रुपए में फरोख्त नहीं हो सकी है। शहरियों ने जिले इंतजामिया की जानिब से चीनी की मुकर्रर करदा कीमत पर फरोख्त न करवाने को नाअहली करार दे दिया है। एक तरफ तो हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ शहर में हुकूमती रेट कायम नहीं हो सकी। जिले इंतजामिया की जानिब से चीनी की मुकर्रर करदा कीमत 70 रुपए पर अमल दरामद ना हो सका। शहर में चीनी 80 से 85 रुपए फी किलो में ही फरोख्त होती रही और शहरी 70 रुपए किलो की चीनी तलाश करते रहे। चीनी की मुकर्रर करदा कीमत पर अमल दरामद ना होने पर शहरियों का कहना था कि हुकूमत अगर अपनी जारी करदा कीमत पर ही अवाम को अशिया फराहम नहीं कर सकती तो ऐसे इकदामात क्यों किए जाते हैं। उनका कहना था कि जिले इंतजामिया हो या कोई और हुकूमती इदारा सिर्फ और सिर्फ अवाम को रिलीफ देने के दावे करते हैं, जबकि अमली तौर पर मुकर्रर करदा कीमत पर अमल दरामद नहीं करवाया जाता। बिल्कुल झूठ है। 80-82 रुपए किलो चीनी दे रहे हैं, कोई 70 रुपए का किसी से, जिसने अगर बोर्ड लगाया ना 70 रुपए का, उससे जाके पूछें कि चीनी दे दो, वो कह रहा है मेरे पास है ही नहीं। जो लोग उनके खास हैं, उनको पता ही हमारे कस्टमर हैं, उनको वो चीनी दे रहे हैं, वही 80-82 रुपए से कम कोई नहीं दे रहा। अकबरी मंडी के बेशतर शुगर डीलर्स ने मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए शुगर मिलों से चीनी की खरीदारी बंद कर दी है, जिसके बायस
आने वाले दिनों में शहर में चीनी की किल्लत पैदा होने का खदशा भी पैदा हो गया है। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 42। शहर में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान खत्म नहीं हो सका है। पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है कि शहर में अब भी पेट्रोलियम मसनूआत की 40% किल्लत देखी जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के बायस शहरी, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स खार हो रहे हैं। शहर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत ताहाल बरकरार है और पेट्रोलियम डीलर्स के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत ताहाल 30 से 40% किल्लत बरकरार है। ओपन मार्केट में गंदम की बढ़ती हुई कीमतें। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया है। शादबाद में पाकिस्तानी फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन आसिम रजा ने स्टडी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 1900 रुपए फी मन तक जा पहुंची है। अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर गंदम की कीमत को कंट्रोल नहीं किया तो आटे की कीमत में मजीद इजाफा भी हो सकता है। कोरोना वबा से मुतल्लिक शहरियों की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। मौत का सौदागर माफिया बेलगाम हो चुका है। शहरियों से सस्ती ऑक्सीजन भी छीन ली गई है। गुज़श्ता चंद दिनों में ऑक्सीजन की कीमत में 3 गुना इजाफा हो गया। प्राइवेट अस्पतालों और घरों में महसूर कोरोना मरीज ऑक्सीजन सिलेंडर्स को तरस गए। बढ़ती हुई कीमतें आम शहरियों की पहुंच से बाहर निकल गईं। 500 का सिलेंडर 1800 रुपए, 5000 का 15000, जबकि 8000 वाला सिलेंडर 24000 में फरोख्त होने लगा। रोजाना सैकड़ों की तादाद में प्राइवेट अस्पतालों में आने वाले मरीज मायूस वापस लौटने लगे। कोरोना के 50% तस्दीक शुदा मरीज प्राइवेट अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं, मगर प्राइवेट अस्पतालों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है, जिससे मरीजों को इलाज और मुआवजे की फराहमी मुश्किल हो गई है। जबकि शहर में बिजली की बिला तात्तुल फराहमी के लिए मोबाइल ग्रिड स्टेशंस के मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की जानिब से 500 केवी के मोबाइल ग्रिड स्टेशन खरीदने का फैसला किया गया है, जिसके तहत शहर समेत दीगर इलाकों में बिला तात्तुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकेगा। NTDC मेगा प्रोजेक्ट को 6 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल करेगी, जिसमें गैर मुल्की इमदाद भी शामिल होगी। आइंदा माली साल में सिर्फ 50 करोड़ रुपए मेगा प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि NTDC ने ब्रेक डाउन की सूरत में 500 केवी की ट्रांसमिशन लाइन को चलाने के लिए मोबाइल ग्रिड स्टेशन खरीदने का फैसला किया है, जिसके तहत शहर के तमाम सर्किट्स में होने वाली खराबी की सूरत में जल्द बिजली बहाल की जा सकेगी। लाहौर नॉलेज पार्क कंपनी महकमा हायर एजुकेशन के लिए सफेद हाथी बन चुकी है। कंपनी को 1 अरब 89 करोड़ के फंड्स दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। पंजाब की साबका हुकूमत की जानिब से लाहौर में बैनुल अक़वामी मयार का नॉलेज पार्क बनाने का मंसूबा तैयार किया गया था, जिसके तहत बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज के सब कैंपसेस और नॉलेज हब बनाया जाना था। इस मकसद के लिए बेदिया रोड पर सरकारी जमीन भी हासिल की गई और करोड़ों रुपए से मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी भी करवाई गई। ज़राए के मुताबिक मंसूबे के लिए 1 अरब 89 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, लेकिन गुज़िश्ता 2 साल से मंसूबे पर 1% भी पेशरफ्त नहीं हो सकी। हालांकि कंपनी के CEO समेत 30 से ज्यादा मुलाजमीन लाखों रुपए तनख्वाह और दीगर मराद की मद में वसूल कर रहे हैं और कंपनी के दफ्तर का माहाना किराया भी लाखों रुपए अदा किया जा रहा है, मगर इसके बावजूद अफसरान काम करने की बजाय सिर्फ तनख्वाहों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। शहर भर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी हैं। 60 दुकानों को सील किया गया है और 134 गाड़ियां बंद की गई हैं। शहर भर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर जिला इंतजामिया की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में शहर भर में SOPs पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए 1815 इंस्पेक्शन की गयी, जहाँ 194 खिलाफ वर्जियाँ पाई गयी, जिस पर 60 दुकानों को सील कर दिया गया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 134 गाड़ियों को बंद किया गया, जबकि 1,40,400 के जुर्माने आयद किए गए। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल कहते हैं कि टीमें फील्ड में मौजूद हैं और SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बना रही हैं। रेलवे प्रेम यूनियन का बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें न बढ़ाने के खिलाफ मुल्क भर के रेलवे दफातर में यौम स्याह मनाया गया। रेलवे मुलाजमीन की जानिब से रेलवे वॉशिंग लाइन में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रेलवे प्रेम यूनियन के ज़ेरे एहतमाम तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करने के फैसले के खिलाफ यौम सयाह मनाया गया। रेलवे हेडक्वार्टर और रेलवे वॉशिंग लाइन में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन में सदर रेलवे प्रेम यूनियन लाहौर फयाज शहजाद, जनरल सेक्रेटरी खिजर खयात, मोहम्मद अरफान, गुलाम फरीद समेत दीगर मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन की जानिब से हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की गई। सदर रेलवे प्रेम यूनियन लाहौर फयाज शहजाद का कहना था कि वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसके तमाम इक़दामात अशराफिया नवाज हैं। एक तरफ चीनी, आटा और बिजली चोरों को रिलीफ दिया जा रहा है, तो दूसरी जानब खून पसीना एक करने वाले मजदूर को उनके हक से महरूम कर दिया गया। सबसे ज्यादा मायूसी जो हुई है वो रेलवे मजदूरों को हुई है,
इस हवाले से कि आज तक कभी ऐसा बजट नहीं आया जिसमें सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान ना किया गया हो। आप देखेंगे पिछले साल से इस दफ़ा महंगाई भी जो है वो 24 से 25% सरकारी ज़रायात के मुताबिक बढ़ चुकी है, लेकिन जो रेलवे मजदूर हैं वो अभी तक सरापा एहतजाज है, उन्हें 1 रुपये का इजाफा नहीं दिया गया। जनरल सेक्रेटरी खिजर खयात का कहना था कि रेलवे मजदूर और मुलाजमीन काले बजट को मुस्तरद करते हैं। वफाकी हुकूमत सिंध की तरह मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करे। स्केल अप करना तो बड़ी दूर की बात है, उन्होंने किसी मजदूर का, रेलवे मजदूर का नाम तक नहीं लिया बजट में। हम ये मुतालबा करते हैं कि महंगाई के तनासब से जो है वो बजट में जो रेलवे मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। मुजाहिरीन का हुकूमत से मुतालबा था कि वो महंगाई के तनासब से मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करे। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में आइसक्रीम फैक्ट्री पर छापा। नाकिस इंतजाम पर शालीमार टाउन में वाक़ बिग बाइट कुल्फा एंड आइसक्रीम फैक्ट्री सील कर दी गई। 1000 लीटर आइसक्रीम तल्फ की गई है। शालीमार टाउन में वाक़ बिग बाइट कुल्फा एंड आइसक्रीम फैक्ट्री से 1000 लीटर आइसक्रीम, 50 पैकिंग रोल्स, 2 चिलर्स, 2 पैकिंग मशीन्स कब्जे में ले ली गई हैं और उन्हें जब्त करके मजीद कार्रवाई जारी है। डॉल्फिन और पीरू फोर्स भी डाकुओं को नकेल डालने में नाकाम है। निस्तर कॉलोनी में डाकू दुकानदार को दिन दिहाड़े लूटकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वीडियो सिटी 42 ने हासिल कर ली है। डॉल्फिन, पीरू सब नाकाम, जबकि शहरी गली मोहल्लों में लुटने लगे हैं। निस्तर कॉलोनी अवान मार्केट में दिन दिहाड़े डाकुओं ने दुकानदार को लूट लिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ के आमदन से ज्यादा असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में बुरी दरखास्त जमानत केस समेत दीगर नए मुकदमात की समाअत के लिए जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत करने वाला 2 रुकनी बेंच जस्टिस फारूक हैदर के रुखसत पर होने के बायस तहलील हुआ। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ समेत दीगर नैब केसेस की समाअत के लिए जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस मोहम्मद तारिक अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की 17 नवंबर तक अबूरी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर रखी है। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए 17 जून को जवाब भी तलब कर रखा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अबूरी दरख्वास्त जमानत में अदालत के रूबरू पेश होंगे। शहबाज शरीफ की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर केस बनाया है। नैब ऐसे केस में अपने इख्तियार का इस्तेमाल नहीं कर सकता जिसमें कोई सबूत मौजूद ना हो। तवात्तर से तमाम असासे डिक्लेयर करता आ रहा हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात भी बिल्कुल बेबुनियाद हैं। नैब के पास ज़ेरे इल्तवा इंक्वायरी में गिरफ्तार किए जाने का खदशा है। ख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अबूरी जमानत मंजूर की जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज लाही ने बरतानवी हाई कमिश्नर को पंजाब में कोरोना की सूरत हाल और इससे निमटने के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया है। चौधरी परवेज लाही और रुकने कौमी असम्बली मोना सलाही ने बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर से वीडियो लिंक पर गुफ्तगू की। गुफ्तगू में 2 तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए अवामी राबिता मुहिम को मज़ीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक किया गया है। चौधरी परवेज लाही ने बरतानवी हाई कमिश्नर को पंजाब में कोरोना की सूरत हाल और इससे निमटने के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने स्पीकर चौधरी परवेज लाही को पार्लिमानी निज़ाम में कमेटी सिस्टम को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए इमदाद और हिमायत की यकीन दहानी करवाई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कोरोना से सेहतयाब होने वालों से प्लाज्मा अतिया करने की अपील कर दी है। कहते हैं कि सेहतयाब होने वालों को अल्लाह ने मौका दिया है, वो दूसरों की भी मदद करें। अपना प्लाज्मा अतिया करके दूसरे लोगों की जान बचा सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। और कोरोना वायरस के पेश नज़र ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन को चलाने के तमाम SOPs की तैयारी हो चुकी है। चीनी कंपनी के रीजनल मैनेजर ली चिन और डायरेक्टर मेट्रो प्रोजेक्ट एहसन फयाज की सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान से मुलाकात में फैसला हो चुका है। मेट्रो ट्रेन मंसूबा तैयार करने वाली चीनी कंपनी के रीजनल मैनेजर ली चिन और डायरेक्टर एहसन फयाज ने सेक्रेटरी एंड प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान से मुलाकात की है। पंजाब भर के थानों को सरकारी जगह पर इमारतें तामीर करके मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में 115 थाने किराए की या दीगर इदारों की इमारतों में कायम हैं, जिनमें 20 थानों की इमारतों के लिए सरकारी अराजी हासिल कर ली गई है जो कि ज़ेरे तामीर हैं, जबकि लाहौर में 25 थानों समेत पंजाब भर के 95 थाने अभी भी किराए की इमारतों में हैं, जिनका महकमा पुलिस को करोड़ों रुपए किराया अदा करना पड़ता है। IG पंजाब शुएब दस्तगीर ने तमाम थानों के लिए सरकारी अराजी के हुसूल के लिए DPOs को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ मिलकर काम करने की हिदायत की थी। अब तक लाहौर पुलिस ने 20 थानों के लिए जगह की निशानदही कर ली है, जबकि सूबे भर के 15 अजला से 54 थानों की निशानदही हुई है
और कागजात IG ऑफिस भिजवाए गए थे, जिनको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भिजवा दिया गया है, जबकि बकिया अजला को भी फौरी निशानदही करके रिपोर्ट IG ऑफिस भिजवाने का हुक्म दिया गया है। पंजाब में सरकारी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर के इमरजेंसी पावर्स खत्म करने का फैसला। यूनिवर्सिटीज में इमरजेंसी पावर्स के तहत की जाने वाली तमाम भर्तियां भी खिलाफ ज़ाब्ता करार दे दी गई हैं। गवर्नर पंजाब ने तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की इमरजेंसी पावर्स खत्म कर दी। गवर्नर सेक्रेटरीट से जारी होने वाले मरासले के मुताबिक इमरजेंसी इख्तियारात के तहत तकर्रुरियां कवानीन और मुतल्लिका फॉर्म्स के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हैं और इमरजेंसी इख्तियारात के तहत तकर्रुरियां हंगामी सूरत हाल की रूह के मुनाफी हैं। मरासले के मुताबिक वाइस चांसलर्स इमरजेंसी इख्तियारात के इस्तेमाल से मुतल्लिक कवानीन और ज़वाबित बनाकर मुतल्लिका अथॉरिटी से मंजूरी हासिल करें। मरासले में कहा गया है कि इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करके वाइस चांसलर्स असातिज़ा और मुलाज़मीन की भर्तियों में ज़ाब्तों की संगीन खिलाफ वर्जी करते हैं। गवर्नर पंजाब ने सरकारी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को 15 रोज में नए ज़ाब्ते मुरतब करके हड़ताल करने की हिदायत की हैं। सरकारी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स 1973 के एक्ट की शिक 15(3) के तहत इमरजेंसी इख्तियारात इस्तेमाल करते थे। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल का कहना है कि हॉट स्पॉट इलाकों की निशानदही कर ली गई है, लोग वबा को संजीदा नहीं ले रहे। वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के टेली मेडिसिन सेंटर का दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मियां असलम इकबाल ने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन का मकसद लोगों को घरों में महदूद रखना है, अवाम वबा को संजीदा नहीं ले रहे। बैलेंस रख के दोनों चीज़ों को लेकर चलना जो है हुकूमत समझती है ये एक हिकमत अमली थी जिसको साइड बाय साइड लेकर चला जाए और बेहतर अंदाज में चीज़ों को ड्राइव किया जाए ताकि लोगों की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी चलें और इसके साथ साथ हम जो हेल्थ हमारा डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब का है उसको भी मजबूत किया जाए। अल्लाह ना करे अगर ये वबा फैलती है तो फिर हमने किस तरह ए प्लान से बी और सी प्लान की तरफ जाना है। सूबाई वजीर ने मजीद कहा कि लॉकडाउन करने से पहले तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं। लाहौर के हॉट स्पॉट्स की निशानदही कर ली गई है। हमारा जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है उसने भी इस सिलसिले में वो जो हॉट स्पॉट हैं उन तमाम को मार्क किया है कि किन इलाकों के अंदर किन एरियाज़ के अंदर जो है वो ये पेंडेमिक ज़्यादा हो गई है। अब इसको स्मार्ट लॉकडाउन के ज़रिए इसको कर लिया जाए। जो हतमी फ्रीज का जहाँ तक तल्लक है डेफिनेटली हमारी रोज़ाना की तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर कैबिनेट की सब कमेटी ऑन कोरोना के ऊपर मीटिंग होती है। सूबाई वजीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल के दौरे के मौका पर वीसी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, प्रोफेसर एजाज हुसैन, प्रोफेसर असगर नकी, प्रोफेसर बिल्किस फातिमा, प्रोफेसर इब्रार अशरफ और दीगर मौजूद थे। कैमरामैन रानाजिर के साथ बसाम सुल्तान, CD42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।